पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक साबित हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी एक तरफ ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में हुंकार भरते हैं तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी की चुनौती को स्वीकार भी करते हैं। सिंगल हैंड से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के नेतृत्व के नाक में दम कर रखा है। दरअसल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम जाकर आंदोलन के दौरान हताहत हुए लोगों को सहायता का ऐलान किया था, लेकिन इस दौरान पीड़ित लोगों का नाम उन्होंने लिस्ट देखकर पुकारा था। इस मुद्दे को शुभेंदु अधिकारी ने हाथों हाथ लपक लिया और मिदनापुर की रैली में ममता बनर्जी पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता दीदी हताश और भ्रमित हो गई हैं, क्योंकि अब वे नंदीग्राम पीड़ितों का नाम लिस्ट में देखकर भी सही तरीके से नहीं पढ़ रही थी। वहीं रैली में शुभेंदु ने नंदीग्राम के पीड़ितों का नाम मुंहजुबानी बोलकर बता दिया कि सही में इस आंदोलन के हीरो थे। দেখলাম তিনি উদ্ভ্রান্ত, তিনি রাজনৈতিকভাবে হতাশাগ্রস্ত। তিনি প্রথমেই কোন জায়গায় সভা করছেন সেটা তিনি নিজে জানেন না, কারণ 5 বছর অন্তর অন্তর ভোট এলে তাকে নন্দীগ্রামের কথা মনে পড়ে। তিনি উঠে ঘুরে দেখছেন, দেখে বলছেন তেখালির সভা। তারপরে কি করলেন, তিনি নাকি নন্দীগ্রামে তার আত্মা আছে, দেহ আছে কলকাতায়। তিনি বলছেন ভারত মণ্ডল, ভারত মণ্ডল বলে দিদি কেউ নেই, ওর নামটা ভরত মণ্ডল। আর লিস্ট পড়ছেন দেখে দেখে, শুভেন্দুকে টুকলি করতে হয় না। 7ই জানুয়ারি কারা মারা গেছিল? ভরত মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মাইতি, শেখ সেলিম। 14ই মার্চ কারা মারা গেছিল? ইন্দাদুল, ইমাদুল, প্রলয়গিরি, রাখালগিরি, জয়দেব দাস, পঞ্চানন দাস, রতন দাস, গোবিন্দ দাস, সুপ্রিয়া জানা, বাসন্তী কর, পুষ্পেন্দু মণ্ডল, সুব্রত সামন্ত, উত্তম পাল। 10ই নভেম্বর কারা মারা গেছিল? মারা গেছিল শ্যামলী মান্না, মারা গেছিল বইজবাড়ির রেজাউল করিম। আর নিখোঁজ কারা হয়েছিল? আদিত্য বেরা, বাবু সত্যেন গোল, বাবু দাস, কাজল मंडल, हरेन प्रामाणिक, बोलबो नाम सब। वहीं नंदीग्राम के आंदोलन के दम पर ही ममता बनर्जी ने 10 साल पहले बंगाल की सत्ता से सीपीएम को बेदखल कर दिया था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की माने तो ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद नंदीग्राम के लोगों के साथ छल किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम आंदोलन के दौरान जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई थी उन्हें ममता बनर्जी ने 5 बार एक्सटेंशन दिया था। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने गोली चलाने वाले अधिकारियों को प्रमोशन दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन को बंगाल की किताबों में कहीं जगह नहीं दी। কত মিথ্যা বলবেন আপনি? ও ক্লাস 8ম শ্রেণীর বইটা আমার টেবিলে পড়ে আছে। আপনি ওখানে সিঙ্গুরের ইতিহাস লিখেছেন। সিঙ্গুরকে আমি অসম্মান করছি না, কারণ সিঙ্গুরে লোকেট চট্টোপাধ্যায় অলরেডি আপনার ওই শুকনো ঘাস ফুলকে টাটা বাই বাই করে দিয়েছেন। ওই বইটাতে নন্দীগ্রামের জন্য একটা লাইন নেই। নন্দীগ্রামের আন্দোলন আপনি স্বীকার করেন না, নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে আপনি মর্যাদা দেন না। যদি দিতেন 11 বছর ধরে, আজ 9.5 বছরে আপনি সিঙ্গুরের মতো পাঠ্য পুস্তকে নন্দীগ্রামকেও স্থান দিতেন। আপনি কি করেছেন? অরুণ গুপ্তা যে পুলিশ আধিকারিক নন্দীগ্রামের গুলি চালানোর নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার পানিশমেন্ট দেননি, উল্টে তাকে 5 বার এক্সটেনশন দিয়েছেন। আপনি কি করেছেন? সিবিআই চার্জশিটে নাম থাকা গোকুলনগরের অধিকারী পল্লীতে গুলি চালানো পুলিশ অফিসার সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তার জামিনের ব্যবস্থা করিয়েছেন এবং তাকে গত 1 মাস আগে কলকাতার তৃণমূল ভবনে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে আপনার দলের পতাকা দিয়ে জয়েন করিয়েছেন। আপনি অস্বীকার করতে পারবেন যে আড়াই সেদিন তমলুক থেকে গুলিগুলো দিয়েছিল পুলিশের হাতে দেবাশিস গাঙ্গুলি, তাকে প্রমোশন দিয়ে এসিপি হাওড়া কমিশনারেট করেছেন। আপনি আজকে বলতে এসেছেন, কি বললেন? নন্দীগ্রামে দাঁড়াবো। হ্যাঁ দিদিমণি, আপনাকে এক জায়গায় দাঁড়াতে হবে, একটা জায়গায় দাঁড়াতে হবে, 2 জায়গায় দাঁড়ালে চলবে না।
शुभेंदु अधिकारी ने इस जनसभा में दावा किया कि ममता बनर्जी की नंदीग्राम सीट से हार तय है। हमें दाঁড়াতে হবে আর এখন থেকে প্রাক্তন এমএলএ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর লেটার হেড পেড ছাপিয়ে রাখতে হবে। লড়তে আমি জানি, সঙ্গে আছেন তো? আছেন তো? জিতবো আমরা, জিতবো আমরা। মমতা ব্যানার্জি হারবে, 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 হারবে। भारत माता की, भारत माता की। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अमर। वहीं जनसभा में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर दीदी को मिथ्याश्री और भतीजे को तोलाश्री पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल को लूटने वाली ममता बनर्जी और उनके भाइयों को सत्ता से हटाना है। तो मिथ्या ताई बीजेपी सरकार आसबे और मिथ्याश्री पुरस्कार आमरा देबो। प्रथम पुरस्कारटा पाबे ममता बनर्जी और एक तोलाश्री पुरस्कार होबे सेटा पाबे और भाईपो तोलाबाज अभिषेक बनर्जी। तोलाबाज भाईपो हटाओ, तोलाबाज भाईपो हटाओ, गरु चोर भाईपो हटाओ, कोयला चोर भाईपो हटाओ, बाली चोर भाईपो हटाओ। लास्टे बोलबो যদি এদেরকে না তাড়ান এরপরে কিডনি পাচার করবে। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। मोदी की इस पहल की चर्चा करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री के समर्थन में जमकर नारा लगाया। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बसुर जन्म दिवस के पराक्रम दिवस हिसेबे घोषणा करार जन्य मोदीजिर जन्य एकबार स्लोगान होक, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমরা জানাবো এবং গৌরী অভিনন্দন জানাবো আমরা शुभेंदु अधिकारी महोदय। एक बात तो तय है कि शुभेंदु अधिकारी में एक करिश्माई नेता का गुण छिपा हुआ है। भाषण देने और लोगों से जुड़कर संवाद करने में उनका शानी नहीं है। बीजेपी के पास बंगाल में ऐसा कोई नेता नहीं था जो इस तरह की लहर पैदा कर सकता था जिसमें ममता बनर्जी की सरकार बह जाती। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के तौर पर बीजेपी के पास एक ऐसा हीरो आ गया है जिसकी चमक से निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के खेमे की आंखें चौंधिया गई हैं। ममता बनर्जी भी खुद शुभेंदु अधिकारी को अपने लिए चुनौती मानती हैं, तभी तो उन्होंने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खैर, नतीजों का पता तो समय आने पर ही चलेगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी खेमे में जोश और उम्मीद की एक लहर पैदा तो कर ही दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिदनापुर से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।